Thank you all for joining in as we embark on yet another initiative that we hope will help us evolve as professionals. My name is Riya Singh and welcome to the first edition of Solitaire Med Talks. Med Talks is the storytelling and content platform through which we aim to bring you access to story of renowned mentor, celebrity, business leader and inspiring thought leaders. Our aim is to create awareness, inspire, motivate and provide that much required clarity of thought that all of us need in our professional lives. Through Med Talks, we aspire to make a difference in your professional life. This month's topic of conversation is one where we as Indians are quite afraid to talk about. We generally associate it with taboo and shame. This month's topic is pride and our prejudice. In today's world, which is predominantly male dominated, we still talk about women not getting fair chance and still struggling, be it at home or in the corporate world. And then there is a separate community which we still don't even recognize. There are so many myths associated with LGBTQ. Our first speaker at Solitaire Med Talk is India's foremost leading example in and on LGBTQ. Our first speaker is Shri Gauri Sawant. After pandemic, this is first live session for me. लोगों के साथ रूबरू होकर मैं बात करी। Otherwise वेबिनार में वो कट में जीन्स के ऊपर मैं बनारसी साड़ी का टॉप लेके भी बात कर चुकी हूँ पिछले 1.5 साल में। Working from home. Yes, you laughed it, I got it. So मैट टॉक का मतलब मुझे लगा बाबलों की बातें होगी और फिर बाद में आपके बुद्धिजीवी लोगों ने मुझे समझाया कि मैट टॉक का मतलब क्या है। Then I realized yes, it is necessary to understand people कि एक सब्जेक्ट को दूसरे तरीके से मतलब एक सिर्फ नाम देने से उसके जरिए कितने अलग-अलग हो सकते हैं। वाकई ट्रांसजेंडर कहने के बाद थोड़ा अपर लगता है I am a transgender. You will give me respect. You will ask me to sit next to you. But if I say I am Hijra or I am a Chakka, I am a Mamu, I am a good, then you will ask your colleague. Coffee वाले को बोलोगे तेरा तिकड़े बस वाला सागा. Ask her to sit there, and someone will come and talk to you. What is one? Person is one, but it has changed everything. And we are celebrating this Pride Month. I'm little bit guilty कि जब हम लोग बोलते हैं कि we are celebrating the Pride Month, मैं उस दिन का इंतजार करूँगी जिस दिन हम लोग स्ट्रेट डे मनाएंगे या स्ट्रेट लोगों के लिए कोई मंथ बनाएंगे। Why Pride Month? Life is such a colorful. आप में से यहाँ पे कितने लोग हेटेरोसेक्सुअल है? हाथ ऊपर कर देंगे। हेटेरोसेक्सुअल मतलब the person who have same feelings to another thing. मतलब आदमी को औरत से और औरत को आदमी से। आप में से यहाँ पे हेटेरोसेक्सुअल कौन है? Nothing. मतलब अरे करो इतने क्यों झिझके यार? लैंगिकता के बारे में बोलने के लिए आपको झिझक है? आप में से कितने लोग यहाँ पे हेटेरोसेक्सुअल है? Straight like a jalebi. Oh wow, such a jalebi. Bisexuals. Bisexuals मतलब जो बंदे को औरत भी पसंद है, पुरुष भी पसंद है, जिस तरीके से हम लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, मैं शाकाहारी हूँ, घास फूस खाने वाला, तो हम लोग ऐसे देखते हैं। I'm from Konkan, so I say that हम अच्छी नहीं खाते हैं, क्या जिंदगी? उस तरीके से bisexual यहाँ पे कोई है? Gay, yeah, lesbian, transgender. And why we are talking about this then? अच्छा, फिर एक सवाल आप ही के ऊपर Can anyone give me written on paper पे कि मेरे आगे जाके भविष्य में भी मेरी यही लैंगिकता रहेगी? आप लिख के दे सकते हो मुझे? I will be a straight like a jalebi for all my life. राजू का मुंह में देखिए। इधर हंसते हो, उनको मास्क लगा के हंसते हो और डर लगता है। No, we can't give. So gender, it is not here, it is here. I was born as a male. Yes, I was born as a male. पिताजी in same Pune. मैं पुणे की पैदाइश हूँ। पिताजी पुलिस में थे। बड़ी बेटी के बाद उनको लड़का हुआ and he was very happy, पुलिस वाला था।
उन्होंने कोई गले की चेन वगैरह नहीं दी, पर्स के पैसे आई को दे दी कि मुलगा झाला हैप्पी। जेंडर बायोलॉजिकल आई वाज अ मेल, और जैसे जैसे मैं छोटी बड़ी होती गई, एज ऑफ 8 9 आई रियलाइज कि मैं लड़का नहीं। आई नेवर यूज्ड टू थिंक दैट आई एम अ बॉय। अब तो ये विचित्र मिश्रण लगता है कि लड़का खुद को कह रहा है कि मैं लड़का नहीं, हालांकि मेरे पास पूरे आदमी के लिंग, पेट, टेस्टिस, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट आई वाज नॉट नॉर्मल। Who has given me realize, who made me realize that I was not normal? The society. Who the hell the society is? Mother, daddy, behan, bhai, they come for society. स्कूल, कॉलेज, रिश्तेदार, सेकंड की सोसाइटी, और थर्ड आज जो मुझे सुन रहे हैं वो आप लोग। And I just kicked out from fourth society to third society. That's why transgenders are violent, arrogant, we don't bother. मैं चौराहे पे निकला होते हैं बिल्कुल हिचकिचाती नहीं, लैंगिकता के बारे में बिंदास बोल सकती हूँ। किसी लड़का या लड़की को छेड़कर मुझे हिचकिचाहट नहीं होती, because आपके जैसा मेरा ग्रूमिंग नहीं हुआ। I come to that point. So age of 9, age आपको कब पता चला? If I ask you, people ask me this funny question, when you realize that you are like this, और आपको कब पता चला? और आप अभी भी confused है, still you are confused. You get a lot of thought, आपके identity के साथ आप मुझे कोई खराब के देने को तैयार नहीं कि लोग मैं जिंदगी में यही रहूँगा। फिर मुझसे ये सवाल वो क्यों पूछा जाता है? जैसे हम लोग बोलते हैं इट इज लाइक अ कीड़ा, मैं बोलूंगी इट इज लाइक अ कीड़ा। जैसे कोई लेफ्टी होता है उसको पूछते क्या क्या सतानी खा बोलता है, सतानी भूत क्या सतानी जब तो का। अरे बंदा लिख रहा है, लेफ्टी भी होगा तो लिख रहा है, अपना काम भी करता है, फिर लोगों को तकलीफ होती है। We have made our life such a thing that we always put a close in everyone's life. So and what today what I'm facing, this is because of you. मैं जब घर से भागी पूना से 7 रुपए जेब में लेके, I was not knowing where I will go, what will be happen. आपके जैसे करियर प्रोफाइल लेके, अप्रेंटिसशिप के मार्क्स लेके, नई जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई करके फिर 1 महीने बाद एप्लीकेशन देके, रिजाइन देके, मैंने नहीं सोचा था फट करके ACTV के ऊपर के 7 रुपए चुरा करके मैं भागी नहीं था। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं आगे चल के क्या, सिर्फ उस वक्त मुझे घर से भागना था, एक गलती से मुझे जाना था। इसका मतलब ये है कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते, they used to love me, still they love me, इन सभी को कहीं दूर आसमान में, but they used to love me. Try to understand, because of this health society, I am on the street, and who is going to pay my good life? आज मेरी जो सजा है उसकी कीमत मैं दूंगी। The very nice cousin when I used to listen, वो खुद ही मैं खुद ही अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं, वो क्या दिखाएंगे ना मुझको जीने को पता नहीं। You don't have rights to teach me what is my identity, what I have to be, what I have to wear, what is my life. No, nature has every color, has played with every color. ये रेनबो लाइट लगाने के लिए ये मेरे लिए गर्व का चिन्ह है। It is not that easy. 7 रुपए घर से मैं लेके जब भागी थी हाफ चट्टी में शेरे रिक्शा चिंचवड़ से गई थी, आई स्टेशन एरोडा से चिंचवड़ तक आई, 60 रुपए मैंने मुझे दादर जाने के लिए, दिस इज माय डिसीजन, 60 रुपए लेके आए, रन अवे फ्रॉम पूना दादर, मैंने रीच टू दादर, रन अवे फ्रॉम पूना। बहुत भूख लगी थी, रेलवे स्टेशन की कैंटीन पे गए, खाए रगड़ा बैठे, मुझे आज भी वो प्लेट का कलर याद है, चॉकलेटी कलर की प्लेट थी जिसका आगे का नोक टूटा हुआ था। क्या भूख लगी थी करके मैंने फटाफट पी लिया, और जब उसने पानी में अपना एक्वागार्ड के पानी में पूरा हाथ डाल के कांच का ग्लास लगा, that time I realized, oh, this is not my drinking water, but I was not having option because I have left it, I have kicked out from my family to this world, and that for my survival and butter, I have to drink this water. ऐसा water नहीं था, पानी को उसकी उम्मीद है कि पानी जा नहीं रहा था। No option, running back to my Nijera house. She asked me, पुलिस वाले का लड़का है बेटा, तुझे पुलिस वाले ढूंढेंगे, पुलिस वाले आपका लगा देंगे, हमारी नाम तक आके ढूंढ देखो। मैंने कहा कि 2 दिन आपने खिलाया मुझे, मुकरा चावल देके फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि चावलों में भी प्रकार होते हैं। मैंने इंद्रायणी बासमती खाई, मुकरा चावल मुझे पता नहीं था, लाइफ पर सब मेरे घर में कभी नहीं था, और वॉशरूम के लिए डब्बा लेके बाहर जाना पड़ता है, उस दिन मुझे पता चला। कितनी अजीबोगरीब बात है
कि लाइफ में बहुत सारी चीजें सोसाइटी, समाज, नॉर्म्स हमें सिखाती है। आई वाज रैंडम। और उस वक्त जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम सिग्नल पे खड़ी थी, नॉट फॉर बेकिंग, जस्ट फॉर द फन, मला साडी घालायची, नेसायची नाही, घालायची। आई वाज ऑन द स्ट्रीट, गाड़ियां जा रही थी। एट दैट डे मेरे पैरों में स्लीपर थी, मतलब चप्पल थी पैरों में, पर उस वक्त में मेरी जिंदगी की सिंड्रेला थी। कैन यू बिलीव? I was wearing a साड़ी, नकली बाल लगाए थे, ब्लाउज पिन लगा के टाइट किया था, साड़ी अलग कलर की थी, धागा अलग कलर का था, no matching, nothing, कुछ। I was just clubbing on the street. That one day, I was just clubbing. और मैं 10 आधे घंटे में होश में नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। I was like this, la 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 la, I was enjoying, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी थी। इसकी कीमत मैंने चुका दी है, मेरी बहुत सारी उजड़े चुका दी है। मुझे स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना था, मुझे कॉर्पोरेट सेक्रेटरी में बैठना था, मुझे स्कूल में टीचर करना था, पर आप लोगों ने मुझे चौराहे पे खड़ा कर दिया। तो मुझे उसका गम नहीं था। I was very happy on the street. किसी ने 5 रुपए की फटी हुई नोट हाथ में दी, तब मुझे होश आया कि I'm begging, and I don't want to do this. मुझे भीख नहीं मांगना था, मुझे हिलना नहीं बनना था, मुझे उशत बनना था। दूरदर्शन पे जब सैटरडे को रखना हो आता था, तो मुझे लगा मुझे स्वागत करना है। I used to become like a लीला, मुझे बनना था। मेरे चौखट में जो मेरे कैटवॉक में जो आर्ट थी वो उषा उधर थी, बहुत सारे गजरे लगाते, बॉडी की साड़ी पहनना, पढ़ने के लिए लगा। I wanted to be, and she was not original. She was my mother, she was my ideal of what I wanted to be. उषा उधर लगा। छोटे से सपना लेके मैं पुणे से बम्बई आई, चौराहे पे खड़ी थी। No one used to understand me. जब शाम को मैंने उनको 5 रुपए दिखाए थे, उसने कहा कि तुम भीख भी नहीं मांग सकती। दिखने में अभी थोड़ी ठीक लगती है, थोड़ा करिश्मा करके। उस वक्त तो मैं बहुत खतरनाक दिखती थी, खतरों की खिलाड़ी थी, तो सेक्स वर्क में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं बची शायद, वरना HIV पॉजिटिव में कब की मर चुकी हूँ। फिर मेरे गुरु ने मुझे कहा, मैं गुरु ने कहा कि ओके व्हाट यू विल डू। मुझे कहा मला दिखना ही आगे चाहिए, मुझे शर्म लगती है, मैं भी लोगों को दिया, मैं कैसे मांगूंगी। तो नहीं बेटा, भिक्षा का भीख मांगने का मतलब तू सीख ले। जब तू हाथ आगे करेगा किसी के सामने, तेरे अंदर का मीपना जो है, स्वार्थ है, वो जो नफरत है, ये वो दम जाएगा। दिस इज कॉल्ड भिक्षा लेनी। इसे भिक्षा समझ के तू मांगेगा कि मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ, आई एम सन ऑफ सावन, वो सब भूल जाएगा किसी के सामने हाथ में लगे। दिस इज अ बाबू, दिस इज अ भिक्षा। मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझा, पर मेरे दिल और दिमाग में बैठ नहीं आता। ऐसे से भीख ही मांगना। मेरे गुरु ने कहा ऐसे भीख बोलेगी तो तुझे भीख लगेगी, ये भिक्षा है। चल ठीक है, तुझे भिक्षा नहीं मांगनी। I started work with हमसफर ट्रस्ट। It will take 3 days मेरे पिताजी को स्टेबल होने के लिए ये गणेश घर से आया। इतना आसान नहीं था उनके लिए। आज 26 साल बाद जब मैंने उनके लिखे हुए बुक्स पढ़ी, 26 साल बाद मुझे जब पता चला, मैं सोचती कि मैंने ही सैक्रिफाइस किया, और व्हाट हैव फेस, नो इवन माय पेरेंट्स हैव फेस, मेरे सिंगल पेरेंट्स ने भी फेस किया। मेरे पिताजी 3 दिन तक बिना खाना खाए कुर्सी के नीचे बैठे, पर उनकी हिम्मत नहीं थी कि कहने के लिए बाबा सारी गाना गाता था। Because of you people, you are feeling guilty, and you should have to feel guilty because you are the answer for what have done today. आप लोगों ने स्वीकारा है। आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने गुरुजनों को पूछा है what is the meaning of पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? Have you ever asked your teachers? Never. In Sanskrit we learn प्रथमा द्वितीया तृतीया, but we never ask because जिस गांव जाना है, अभी भी मैं आपको दुबई का टेम्परेचर क्या है, आप फट करके गूगल पे देखोगे, पर आप फटाफट से आंसर नहीं दे पाओगे क्योंकि वो आपको जाना नहीं है दुबई। तो आप लोगों ने कभी तृतीया के बारे में सोचा ही नहीं। पर इस मीठी गलतफहमी में मत रहिएगा कि हमारे घर में कोई ये पैदा नहीं होगा, हमारे खानदान में कोई लेस्बियन पैदा नहीं होगी, हमारे खानदान में कोई ट्रांसजेंडर पैदा नहीं होगा, क्योंकि आप आपकी लैंगिकता के बारे में अभी भी मुझे लिख के दे को पैदा नहीं। At the age of लैंगिकता you will realize what you are. Might be this could be a miracle for you. अभी रिसेंटली एक फिल्म मैं नाम नहीं लूंगी, जेल में बहुत सारे कैदी HIV पॉजिटिव टर्न आउट हुए और सर्वे में पता चल गया कि वो सेक्सिस्ट बिहेवियर रखते हैं। HIV का प्रसार किस तरीके से, जागतिक संबंधों से होता है, माता का डॉक्टर ये सब, पर अनैसर्गिक संबंध में, मतलब असुरक्षित संबंध, असुरक्षित संबंध से होता है। बाद में काउंसलर्स को पता चला कि यहाँ पे ब्राजील में बहुत सारे आदमी आपस में संबंध रखते हैं और उन्होंने बहुत WHO उसको बहुत अच्छा नाम दिया,
बिहेवियर बाइसेक्सुअल, जैसे वो बीबीसी में हम लोग एक चैनल देते हैं ना, आदमी जंगल में जाता है, साथ में मुंडी का के वो पी लेता है, खतरनाक पानी वो चलाता है, वो पीता है, मतलब प्रिजन में लोग औरत की मुंडी करके आदमी के साथ सेक्स करते हैं, उसको आप लोग बिहेवियर बाइसेक्सुअल का। अरे मैं हंसी लेने का मजबूर दिस हाउ कुड बी everyone was having sex with men, मतलब जो जेल में सभी करे जाते हैं। Then we never talk about the gender, we never talk about नैतिकता। इस समझ लगी स्कूल कॉलेज में होना बहुत जरूरी है। I started working with translator that time I realized I used to take my class I use word is client या की population हम लोग बोलते हैं, तो मैं इन लोगों को दवाखाने लेके जाती थी, डॉक्टर से खतरनाक आया नहीं हो, एक अच्छा लेके चलो चलो उधर जाके paramedical staff was not sensitized. Doctor is not ready to touch us. अगर मेरा ऑपरेशन हुआ है, if I have castrated myself, अब मेरा एक का ब्लॉकेज होता है, मुझे 16 नंबर का कैथेटर डालना पड़ेगा। इतनी आसान चीज के लिए डॉक्टर एक दूसरे को पूछते थे, अरे बाबा इतना टाइम कैसे यूजिंग ऑपरेशन? मैं बोलूं कि 16 नंबर से 21 नंबर से 5%। इतना डॉक्टर लोगों को पैरामेडिकल, then I realized कि हम लोग पैसे के लिए अकाउंट्स देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, देना बैंक में नहीं, आईसीआईसीआई मैं किसी बैंक को हैंडल नहीं करता, कहीं पे भी हमारा अकाउंट नहीं था। I used to give it to my guru other than the Hanya। मेरे बहुत सारे हिजड़े हैं जो कमाते हैं, ठीक मानते हैं, कोई अच्छे से होटल में पैसा रखते हैं, घर से भाई का एक बार का फोन आता है, भाई के बच्चे की तबीयत खराब है, पैसा भेज। हिजड़ा तो नहीं जाता, नहीं सर्टिफिकेट के पता गांव में हमने कहा किसी शहर में काम पे लग गए, हिजड़ा मनी ऑर्डर करता है, पैसे का कोई जान धन अपनापन नहीं से हिजड़े पैसे भेज देते हैं। मेरे कितने सारे चेले जिन्होंने बहन भाई की शादी के बेटे के लिए मेरे चेले को कहा गया कि माता पुलिस से लग्न करने से सोने का मंगलसूत्र बना, वो हिजड़े ने बाहर हरी पेटे जैसे शोरूम में जाके बाहर खड़े लेके दूसरे आदमी के पास पैसा देके कि मैं कांच की दुकान में कैसे जाऊं, वो ऑर्डर में गोल्ड की दुकान में जाकर उसने मंगलसूत्र पहना, गांव में भेजा, अब तक उसको पता चला कि शादी हो चुकी है, उसको बुलाएंगे। आप समझने की पीपल डोंट वांट दिस, हमको शर्म लगती है। अगर आपका कोई रिश्तेदार बड़े पोस्ट पे आप आसानी से बोलोगे, वो जो लीडर है ना, मेरे मामा का लड़की का भाई लगता है, पर आप में से कोई ये नहीं कहोगे कि मेरे खानदान में कोई जड़ा, मेरा सगा भाई जड़ा, मेरी छोटी बहन जुड़ी, नो नेवर। सोसाइटी में हम लोग सर्वाइव नहीं एग्जिस्ट ही नहीं है। I started working with डॉक्टर, छोटी-छोटी चीजें, हमको डॉक्टर हाथ लगाने को कह रही है, सिक्योरिटी नहीं है, सिग्नल पे है, तुम्हारा पीयूसी टेस्ट का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, पर मेरे हेल्थ का पीयूसी सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था। So we started Sati Chachu Trust. Then we realized the same issues are with female sex workers also. Being a woman, they are forced to get the sex work. Marginalized community, आपका जॉब पे होता है, आपके एप्रेजर होता है, सेक्स वर्कर को कोई लीगल नहीं कहता है। We also say श्रमजीवी, या महाराष्ट्र में अपन कामगार नहीं करते, बट फीमेल सेक्स वर्कर्स को वर्कर्स कहने वाले उनको लीगल आइडेंटिटी नहीं देते। आप समझने की कोशिश करो कितनी शर्मनाक है। तो मैं ट्रांसजेंडर्स के साथ और फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ काम कर रहा हूं। One day one lady came to me, मेरे YouTube पे आप देखोगे बाद में वो पूरा स्टोरी है। One lady came to me और उसने कहा कि हमारा जस्ट गिव मी पिकल, दो आंखें डॉक्टर, I just get an approach किया, उसको पता कि वो प्रेग्नेंट है। सी जिंदगी का फलसफा था, और अगर अच्छा बने तो प्रेग्नेंट है, और वो गलत फहमी थी मेरी। मैं रोज दबा करके अच्छा तो सवाल ये था कि फिर वो लड़की को जब बेच रहे थे, उसको बच्ची हुआ, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि जानवर को जिस तरीके से बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो वर्ड दे यूज्ड टू सेल दिस गर्ल, वो लड़की लोगों को बेचा जाता है। दैट टाइम माय फर्स्ट टाइम मैंने अगर मुझको जिंदगी में बोला नहीं कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था, व्हाट यू टेक योर करेज टू कम अप, ठीक है ट्रांसजेंडर के बोलता मैं करें, मेरे लिए कोई करेज की बात नहीं थी, ये मैं थी। आज आई एम बटरफ्लाई, आई एम कलर ब्राइट, ये जो कलर मैंने किया आई एम हैप्पी, ये मेरी जिंदगी का कैनवस मैंने कंप्लीट किया। पर जब मैं मां बनी, वो मेरे लिए डिसीजन था कि सेक्स वर्कर की लड़की को मुझे सेक्स वर्क में जाना नहीं देना था। पर इतना आसान होगा आपको लगता है? जब मैं घर बच्ची को लेके मेरी कम्युनिटी ने मुझे विरोध किया, बेटा इंसान का बच्चा क्यों लाई, कल तक तो कुत्ते के लिए लाई थी, उनको दवा कर इंसान का बच्चा उठा के लाई, मां वी आर ट्रांसजेंडर्स मत कर, ऐसे नहीं थोड़ा भी रहता तो उसका कोई आएगा तो दे दूंगी रहते रहते गायब की इन माय लाइफ। मैं गायब को स्कूल जाती थी, वन डे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि शी इज क्लैपिंग इन द क्लास, वो लोगों के शरारतें करती है, दादागिरी करती है, लोगों को क्या करते नहीं करते, मैं बात मेरी बेटी की मेरे जैसे पढ़ेगी।
जब स्कूल से फोन आया, जब प्रिंसिपल ने कहा कि बोला इसकी माँ को बुलाया था, मैंने कहा नहीं इसकी माँ, इसे नहीं आप इसकी माँ नहीं, आप इसके घर में उसके पिताजी को अपने सब उनको कहा कि सेक्स वर्क में थी, ये को बंदी ने भी टीचर थी, गुरुजन थी, वो सरस्वती थी मेरे लिए, बट शी वोंट अलाउ मी टू सिट ऑन द चेयर। हाँ वो बेटा खड़े थे, उनके नजरों से मुझे पता चला था कि उनसे कोई नहीं देगी। फीस मैंने भर दी तो सवाल फीस का तो उसने कहा कि देखो आप अच्छा पाल रहे हो, क्या आप गुजरात बनाना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं। तो वो उसके स्कूल में कॉलेज में ताली बजाती है, लोगों को सताती है और धमकी देती है। मैंने कहा देखो मैडम जिस माहौल से लड़की बड़ी थी उसमें ये होना स्वाभाविक था। आपके बच्चों के जैसा था शुरू करो कि मेरे बच्चे को शायद गाली सबसे आते हैं, तो शी इज टू बी रेड लाइट एरिया, शी वाज नॉट अ पैरिस बेबी, शी वाज नॉट अ सार्लेक्स बेबी। उसने कांटेक्ट लैंगिकता उत्तर लोगों के पिक्चर सब देखा था उसने, वो बहुत जल्दी बड़ी हो चुकी थी। फिर एक डिसीजन मैंने उसे हॉस्टल में रख दिया, फीस भरना, छुट्टियों में वेकेशन में घर पे लड़कियां, उस तरीके से गाइड का मेरा मदर चालू था। दैट्स हाउ वी से मदर इज अ बिहेवियर टू लव समवन, टू केयर समवन, दैट इज अ मदर। एवरीवन सेटिंग ओवर योर या मदर, आपकी लैंगिकता मुझे पता नहीं, क्योंकि इन महाराष्ट्र वी कॉल विठल आल्सो मदर। एवरीवन सेटिंग ओवर योर मदर। औरत को बच्चा होने से ही मात्र तो नहीं है, हम किसी को प्यार कर सके, दैट इज आल्सो मदर। To love someone, to care someone, that is a mother. अब मैं कैसे इससे अनछुई रह सकती थी? So I became a mother of five. Then one day I used to visit sex worker area. मैं कबाड़ी पूरा चली गई, वहाँ देखा छोटे-छोटे बॉक्सेस, आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, चार-चार के कंप्यूटर, फिर आपके बच्चे का एक फोटो होता है, आपका एक मग होता है, कॉफी टेबल के पास एक डायरी, इस तरीके से हमारे घर में होता है। छोटा सा पेपर होती है, उसके नीचे का खटिया डालते हो, उसके ऊपर गैस नीचे 15 किलो की गैस। और मैंने एक दिन देखा कि औरत छोटे बच्चे को बाथरूम में रख के सेक्स वर्क करती है। मैं 120 बनारसी गोला कच्चा खाती थी, इमाम 110 जिंदगी में दर्द चल गया था, भूलने की कोशिश करती। स्वच्छ भारत अभियान की मैं भी हूँ, मैं भी नहीं खाती और मैंने गुनाह कबूल कर लिया आपके साथ। आई डिस्पेट एवरीवेयर, मुझे जानबूझ के एयरपोर्ट पे भी बहुत मजा आता था थूकने के लिए। वो मेरी पिता जो थूक पड़ती थी ना, मैं समाज के ऊपर थूकने से मुझे अंदर से फीलिंग आता था। यस, स्वच्छ कचरा डब्बा में थूकू के बाद जी पता है क्या, और जो कचरे वाला गंदा मुंह करेगा वो देखने के लिए जो कसम मैं ही एंजॉय करती। Yes, I was the best of me because my life was that shit for you people. मुझसे उम्मीद मत करो सोफिस्टिकेटेड रहने की, डिसेंट तरीके से बात करने की, because I am the Vishakti, मैं आपको छीनूंगी, नोचूंगी, मारूंगी, उस तरीके से मेरा समय का काम। शेर को कहेंगे कि जानवरों को जाके बोला आप बोला खाते कोई नहीं आएगा। ये जो आप बोलेंगे डिसेंट तरीके से नाको ना, आप लोग क्यों चल रहे लगे होते हो, आप लोग क्यों ऐसा करते हैं कि आप लोग कितने अच्छे दिखते हो, ये सब क्या मैं बहुत दे चुकी हूँ। समय का इतना आसान नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आप ही समाज। मैंने रियलाइज कि नो लॉजिक दैट लाइफ इज गोइंग ऑन टू द मदर ऑफ, हमें बिंदास थी कि कोई भी साड़ी में मेरे ड्रेस दिखे आती तो मुझे मजा आता था। कितना बूढ़ा रिक्शा वाला भी जब कार सेट करता है, तो जब मैं गायत्री के साथ जाती थी शी यूज्ड टू पुश मी लाइक दिस, आप तल्लू ले लो, दैट पुश हैड मेड this from grandchildren to mother। और सीधा कहना है कि मेरे लिए रिक्शा वाले के आनंद के लिए मुझे रियलाइज मेरी बेटी ने किया। सोपर हेटेरोसेक्सुअल सोसाइटी के बॉक्स में नॉर्म्स में मुझे मेरी बेटी ने लाया। सो आई वुड से कि मुझे पैदा उसने किया, शी हैड मेड मी, और आप लोगों ने मुझे जगत माता कर दिया। In 2014 I am the person who filed a petition in the Supreme Court, वो भी मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, because इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, I am an Indian citizen। फिर आप कौन है मेल और पुरुष की कैटेगरीज में मुझे नहीं बात, फिर भी न्याय व्यवस्था मुझे नहीं करती एज अ पर्सन। I don't want to be a male, I don't want to be a female. No, I respect everyone. But what I am? That's why in 2014 I went to Supreme Court. पर सिर्फ मेरी लीगल आइडेंटिटी के लिए मैंने समाज से अलग स्कूल कॉलेज मांगा नहीं, नाम मांगे नहीं। जिस दिन मैं बोलूं कि जो लोगों के अलग स्कूल कर दो अलग तो मैं अलग हो जाऊं। I want to be in the society, I'm the part of the society। अब तब तक मुझे बाहर देखोगे, आजकल तो गार्बेज का भी सब यूज होता है ना रीयूज, हमें तो गार्बेज ही नहीं। I want to be in the part of the society, और आपके आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। तो सडनली धीरे धीरे जो बच्चे को मैंने देखा कि पास सेक्स वर्क कर रही है आज तक,
She just looked at me. That's how we started. Aji's घर means नानी का घर. Because in our family, my guru is there. My chelas are there. My sisters are there. The Nani ka ghar concept is India's first transgender house, where the abandoned girl, see the abandoned word to the bread paper makhan lagane ke sath samjhoge. I don't like that word. Abandoned girl. So transgenders are taking care of these girls called Nani ka ghar, where all girls will be the same. और 20 साल के बाद जब आपका मेकअप का अलग और कुछ रहेगा, साइकिल हुआ होगा, कुछ नाम रखता होगा, तब मैं शायद होगी, तब मेरे साथ कोई बेटी आके बोलेगी, आज मैं वाकिल से गए। That दिन वो मेरे लिए राष्ट्रपति पुरस्कार। जब मेरे आश्रम की, हमारे घर की कोई लड़की डॉक्टर इंजीनियर आपकी कंपनी में काम करे, बहुत पता मुझे जाना है अभी तक। This is a big deal. And I'm scared because being a transgender, being a leader, मेरे पर समाज की जिम्मेदारी because I follow Swami Vivekananda and Swami Vivekananda always said don't ask society what they have done for us, it is our duty to prove ourselves, ask that what are we going to give back to the society. मैं मेरे गुरु की चेला हूँ, उनकी बेटी हूँ, मैं गायत्री की माँ, बहुत सारे बच्चों की मैं माँ हूँ, I'm happy with what I am, but I know मुझे उन्हें रहना नहीं, once you think like a boss, हमको ये काम करना है, we have to give this best in everything. I have decided what is my goal in my life. I have to give best to the society. One day if I won't be there, they should have to think me transgender concept because people can't think that transgender should be a mother. Please, when we talk about gender, यहाँ आने का मतलब ही ये था, आपको working place, why I am here today? Can anyone explain me why I am here? Because of only pregnant? अगर आपके साथ कोई बंदा काम करता है ऑफिस में जिसकी नैतिकता आपसे थोड़ी हटती है, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों होती तकलीफ? क्यों 8 घंटा कोई बंदा आपके साथ काम करता है, आपके बॉस को, कलीग्स को बता नहीं सकता क्या क्यों? जैसे कोई टकलू को टकलू बोल दे रहा है, आपको बेझिझक शर्म नहीं लगती। Why every time? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सुशिक्षित लोग का हो, पढ़े लिखे अच्छे वक्त में कॉफी पीने वाले लोग हैं, एजुकेटेड का मतलब मुझे नहीं समझते हम क्यों लोगों के जख्मों को भेद रहे हैं। ये जख्म भी नहीं है, लेकिन इट्स नॉट जख्म, इट इज योर कलर। डू वन थिंग, बी ओपन, बी कलरफुल, बी अ पर्सन, ग्रेट पर्सन, कीप योर आर्म्स लाइक दिस फॉर ईच एंड एवरी सेक्सुअलिटी, not forget transgender, keep open your arms for gay, lesbian, bisexual, every each and every person. वर्किंग प्लेस ये ऐसी जगह है जहाँ पे एचआर पॉलिसी में ये होना चाहिए कि एलजीबीटी के लोग काम करें, हरासमेंट बुलिंग नहीं होना चाहिए। किसी का आवाज पतला है इसका मतलब वो गे है, किसने कहा? मेरा आवाज काफी पतला है, मुझे हमेशा फोन आता है हाँ सर गाड़ी आ रही है, लेकिन मैं मुझे पैटर्न बोलो तो हंसता है सामने वाला। दैट डजंट मीन आई एम अ मैन। सिर्फ किसी के आवाज से आप जज कर दोगे कि तो वायलेंट हो गए। Why you won't allow people to talk about? Because you are not confused. आप खुद कंफ्यूज हो आपके आइडेंटिटी के लिए, आपने कभी बोला ही नहीं, आपने समझा ही नहीं। हमेशा ऐसे विकृति एवं प्रकृति, what is the meaning of that? निसर्ग में बहुत सारे कलर्स हैं। We are not in favor of anyone. No, मेरी नैतिकता आप मुझे कुछ भी बोल, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। What is my taste, my choice, it will be my choice. Only आप अगर मुझे समझ कर दोगे तो मेरे लिए जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, काम करना अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मेरे दोस्तों को पता है मेरे बारे में। ज्यादातर मेरे घर वालों से दोस्तों को पता होना बहुत जरूरी मायने रखता है। 8 घंटा आज नहीं तो कल 1 घंटा चला जाएगा, फिर हम एक ऑफिस में आ जाएंगे, फिर लोग टुगेदर आएंगे। कोई कॉम्प्लेक्स, कोई कमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को फॉरवर्ड करे। अगर कोई मुझे बोले तो मुझे भी, आपको घर से भी कहने को शर्म लगती है मैं हेटेरोसेक्सुअल हूं। It take 5 minutes to come out. It was not easy for yourself also. So you don't have right to show your finger on any LGBT people. Let's be open. निसर्ग क्योंकि कल हम क्या सकते हैं आपको पता नहीं। जाते जाते bullet point. Why I'm here today? I'm not going to give you ज्ञान सागर nothing. You are unnatural people. You should have to understand. LGBT के लोगों को, ट्रांसजेंडर्स लोगों को चौबीस रहने के दिन खत्म हो चुके हैं। We are educated. Still I am knocking. Previously I said knock your brother. Now I am knocking your offices. I want a job. Give me bread and butter for whole life. Make change in your HR policies and all. Be open.
इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, रेनबो प्राइड मैन, ये सब बड़े-बड़े सुनने के लिए आसान लगता है. Still it won't come from your mindset. You won't allow everyone to come out. Nanika is a mission but taken by from me, my gurus, my chela, who take care of all girls. जब उसकी माँ चली जाए जब हाथ में बच्चा निकल गया ना, अच्छे हो गए, इसकी तबीयत अच्छी लग गई, गोरी हो गई, क्या लगा? मैंने कहा इसको अच्छी तरीके से नहलाया आपने, अब उस आँखों में काजल डालने के लिए बच्ची. Look at it, making smile of everyone's face that is a life. Pride Month is a colorful month. This is an eye-opening for us. Inclusion, diversity, लोगों के लिए आप खुले रहते हैं. Ask people to come out. Ask them, make them comfortable to talk about it. और ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले से केस हम दोस्ती करके तो हम भी दे देंगे, क्योंकि मुझे पैदा करने वाले हेटेरोसेक्सुअली थी, वो मुझे कभी होमोसेक्सुअल बना नहीं पाया, तो मैं किसी को जबरदस्ती लेस्बियन और गे नहीं बनाऊंगा. बात करने से कुछ करने से नहीं करूँगा. I will come to a question and answer. Honestly speaking, माझे मित्र जे अगर स्कूलचे होते आता कॉलेजमध्ये आता दोन्ही आहेत. काही मित्र माझे गे पण होते आणि काही मुली जे आहेत लेस्बियन्स पण आहेत. माझा एकच प्रश्न होता, कारण मी एक खूप वाचण्याचा प्रयत्न केला होता की आता जसं आपण असं काही सेन्सिटिव्ह टॉपिक म्हणजे माझ्यासाठी नाही, because I have seen and I have more of friends becoming and addressing themselves कि I am gay, and that is not accepted. Okay, so that is your choice, but I am afraid. So my concern was now transgender is something that also we have accepted. I mean, but that is something that we have seen grow up. Okay, they are also humans, we are also humans. So it's a unity that we do have. But my concern is now we also have a segment where transgenders are also there. So that is something that we also come out and they identify. So they are also being we are the same level at par as itself. पहचान पाता था क्या मानना भाषा बहुत अच्छी है और आपका ये जो सवाल है, हाँ औरतें भी ट्रांसजेंडर्स होती है. माय पार्टनर वाज मतलब एक क्रश में थी किसी वो ही वाज अ फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर. सी बायोलॉजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी सो मेरे लिए बहुत आसान था विरोध करना, पर अगर कोई स्त्री को कल को आदमी बनना है तो कितना आसान होगा. अरे आपको क्या रेसिपी पार्टनर का रोल करना है, शादी हो करना है, आपको क्या करना है, आप वही सोचते हैं. आप शादी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, ठीक है, तो पार्टनर ना क्या होगा, यही होगा. सो देयर आर फीमेल सेक्स वर्कर, अक्सर फीमेल ट्रांसजेंडर हु हैव बिकम अ मेल, पर सिर्फ सर्वाइवल और ब्रेड एंड बटर के लिए आदमी बने बच्चा ऐसा नाम मफतलाल जी आहे, अंजलि मफतलाल, अजय मफतलाल, इज अ फीमेल टू मतलब मुकबल भी हुआ है. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लैंगिकता बदल के आदमी बने, और फिर बनने के बाद पुरुष बनने के बाद तो बहुत आसानी से लिया जाता है ना. मुलगा पाहिजे, खूब लड़े मैदाना वो झांसी वाली रानी थी, कहीं नहीं कमा रहे मैया बहुत अच्छी लगी, मर्दाना कहेगा ऊपर के देवते लोग भी तो आपको सत्ता कोई दे देगी. खूब लड़ी रानी क्या करता है, खूब लड़ी रानी भी कह देते हैं. It will take time, but yes, we have this. देखो क्या बात स्त्री उनका प्रमाण का जे तुम्ही आता नांदी करतो तरी सांगितलं तुम्ही जर सोसायटीचे बरेच काही केले आता हे जे एज्युकेशन आहे सोसायटीचा बराच सगळ्याच सेक्टर या विषयावर बोललेला किंवा हे विषय जाणून घ्यायला अजून तयार नाहीये. तर ती तयारी आणण्याच्या दृष्टीने तुम्ही तुमच्या संस्थेने प्रयत्न केले की पुस्तकं लिहिणं, डॉक्युमेंटरी तयार करणं किंवा लोकांचं याच्याबद्दलचं नॉलेज कसं वाढेल आणि हा जो गॅप आहे आयुष्याचा गॅप हा कसा कमी होऊ शकेल याच्या दृष्टीने काही पावलं उचलली गेली हे मला जाणून घ्यायचं. ठीक आहे. नानीचा जर इंग्लिशला असतात की आम्ही दोन समजतात वेगवेगळ्या वाईट टाकतात, जसं आपलं गणित आहे का त्याचं वजा वजा आली, तसं फिमेल सेक्स वर्कर्सही तुम्हाला नंबर ट्रान्सजेंडर होतो. म्हणून समाजात आम्ही एकत्र आलेलो आहे. आणि आपण काय म्हणतो तुम्ही मगापासून जेव्हा म्हणत होते समाजाची चुकी समाजाची चुकी हे तर शाळा कॉलेजमध्ये असतं किंवा तुमच्या जसं तो म्हणाला उत्कर्ष म्हणाला की माझे मित्र किंवा मी लेस्बियन होते शाळेमध्ये असताना मला जास्त त्रास झाला.
पण नर्सरीमध्ये जर तुमच्याकडे एखादा छोटा प्रांजळ वेळ गाडी तुम्ही पाहिलंय का, किंवा छोटा इंजिनियर रस्त्यावरती साडी घालून बघितलाय का तुम्ही? मग एवढे मोठे एरियाज आले कुठून हा प्रश्न कधीच पडला नाही का? म्हणजे लैंगिक शिक्षणाविषयी या सगळ्या विषयी स्कूल और कॉलेज में अगर जेंडर के बारे में, लैंगिकता के बारे में पढ़ाई होगी तो बहुत आसानी से जाएगा। अब मैं ये कहती थी व्हाट कैन यू डू नाउ, यू कैन डू एवरीथिंग। सोसाइटी में मतलब स्कूल कॉलेज में नर्सरी में 4 साल का बच्चा जब घर से स्कूल में फर्स्ट टाइम जाता है, डब्बा का डब्बा लेके, वाटर बॉटल लेके, बैग लेके चला जाता है, इसको कि गेट कीपर पे घर जो है इसको अपॉइंट कर, तो बच्चा फर्स्ट टाइम देखे कि ये एंट्री थोड़ी करता है, थोड़ी मैच्योरिटी में गाड़ी है और उसका हाथ पकड़ के उसको क्लासरूम तक छोड़ेंगे, तो शायद उसके मन में डर चला जाएगा। आप तो मुझे मस्ती करेंगे तो आगे उठा के लेके जाए। मैं बहुत कुछ होता है, मैं डीमार्ट में कभी-कभी चले जाते तो आप कहते बच्चे को लेके इसको लेके जाओ, लेके जाओ, मैं नहीं बेटा तुझे नहीं, तेरी मां को लेके जाओ, मेरी मां मेरे काम की मैं काम करने चाहिए पर काम छोटे बच्चे को बोलेगा टिकट जाओ आपको पुलिस पकड़ना है और वो डर ही बैठ गया। वी नेवर टॉक अबाउट डायलॉग, वो डायलॉग जिस तरीके से आप डर बैठा देते सोसाइटी को स्टीरियोटाइप थोड़ा बंद कर दीजिए। ये उठा के लेके जाते, मैं क्यों किसी को उठा के लेके जाऊंगी? अमिताभ बच्चन ने मेरे महीने में तुम्हारा काम किया था, उनको जबरदस्ती पेड फॉर दैट। नो वन इज फोर्स एलिमेंट टू बी लाइक व्हाट यू आर। ये उद्रेक है, ये अप्रोच है रास्ते पे जब आप ताली बज की सुनते हो, दैट इज नॉट हैप्पी, दैट इज अ मूड, दैट इज अ अप्रोच फॉर ब्रेड एंड बटर फॉर सर्वाइवल ऑफ नंगे रास्ते पे चौड़ा होना वी कैन प्रूव दैट आई एम नॉट अ मेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको मेंटल हेल्थ के बारे में क्या हमको कोई काउंसलिंग नहीं किया गया, एंटी मूड स्विंग्स के हमारे कोई दवा नहीं है। तो सोसायटी मध्ये शाळेमध्ये लैंगिक शिक्षणामध्ये जर शिकवलं गेलं अभ्यासक्रमामध्ये असं, मुझे याद नहीं आता जब वो शबाना आजमी का कोई एडवर्टाइज आता था विस्पर का, सारा सूट लिया वो चौक टाकायचं, ते माझ्या घरात माझ्या डोळ्याला असं हात टाकायचं, मेरे लड़का था विस्पर की एडवर्टाइजमेंट मेरे आप में हाथ डालने के पिताजी को तब तो रिमोट नहीं हुआ करते थे, चैनल चेंज करने के तब पूछ लेते तो तुझे कौन सा पानी क्यों ले बेटू मतलब जाओ वो एडवर्टाइज आ जाती है। आप समझ रहे? लेट मी डेवलप करना क्यों कहना, बिकॉज़ नथिंग इज रॉन्ग एंड नथिंग इज करेक्ट। बंद पड़ी हुई घड़ी 24 घंटे में 2 बार सही होती है। ज्यादातर लोग इसके लिए सुसाइड करते हैं। पुरुष प्रधान से मैं कितने सारे गे लोगों ने मुझे मेल्स लिखे, मैं गे को 32 सालों से मेरे एक पार्टनर है, पर मेरी मां कह रही कि शादी कर ले सब सुखी हो जाएगा, नहीं तो मां मर जाएगी। मां मर जाएगी, तुम किसी औरत को घर लेके आ रहे हो जिसको तुम बता के तो तैयार नहीं, तुम्हारे नहीं ठीक था, सिर्फ माँ बाप बोले तुम शादी करोगे। एडवर्टाइज की अभी रिसेंटली एक व्हाट्सएप पे वीडियो आ रहा है, छोटा लड़का रो रहा है मला बाइक को पाहिजे, क्यों बाइक को चाहिए? तो बाबा खाना बनाने के लिए चाहिए। ये हमने क्यों सिखाया है? जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो क्यों छोटा बच्चा है तो मला भूख लगी मुझे माँ खाना नहीं दे करके मुझे बीवी चाहिए, लोग बहुत गलत मैसेज को शेयर कर रहे हैं। नो वी शुड स्टॉप, वी शुड टीच। माँ अगर खाना बनाए तो पापा में भी प्लेट उठाना चाहिए। जेंडर तभी से घर से शुरू होगा, यू नो वी डोंट कीप इट लाइक दिस। और सिर्फ जेंडर ही नहीं, सब चीजें हमको सिखाना बहुत जरूरी है। तो सेक्स एज्युकेशन होना बहुत मस्ट एंड मस्ट है। आणि हम तो बोलते की भारतामध्ये कसं होणार, खजुराहो हमारी संस्कृती है। विष्णु का पौन्य अवतार आपको पता है, स्वामी समर्थ अन्नपूर्णा आपको पसंद है, शिवा का अवतार नटेश्वर ये करके जेंडर के बारे में बोलने को आपको इतनी झिझक क्यों होती है? हर चीजों के लिए आपको डर क्यों लगता है? एज्युकेशन असणं गरजेचं आहे आणि आमच्यासाठी सगळं ओपन म्हणजे एक फॉर्म असला पाहिजे, तेव्हा ते सहज होईल. या कम्युनिटीमध्ये किती चॅलेंजेस आहेत, किती प्रॉब्लेम फेस करतायत आणि रिअली मी आता जेव्हा तुमचं ऐकत होतो मला रिअलाइज होतं की लोकांनी किती कष्ट फेस केलेले आहेत, समाजाकडनं तुमच्या किती प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेले आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही असं वागायला मजबूर होता, असं व्हायला नको होतं. पण त्याच्यावर असं एक विचार केला की जर ट्रान्सजेंडर्सना जर कॉर्पोरेट सेक्टर्स मध्ये जॉब द्यायचे झाले किंवा त्यांना ऍक्सेप्ट करायचं झालं त्याच्यामध्ये काय प्रिपरेशन करायला
म्हणजे काय चॅलेंजेस असायला असू शकतात आणि त्यांना कसं एक्सेप्ट करावं ते तुमच्यामध्ये तुम्ही काय सांगू शकता? कम्फर्ट असतं. मी एक वर आपल्याला शिकली शाळेत, मी मास्टर्स केलं. मला शिकवताना माझ्या गुरुनी कधी असं नाही शिकवलं की याच्यासाठी जसं शिक्षक असतो फक्त एका विद्यार्थ्याला नाही शिकवत. आई वडील कमी जास्त करत असते प्रॉपर्टीमध्ये, मुलालाही देणार मुलीलाही देणार, पण गुरुच्या कधी शिकवलेलं ज्ञान सगळ्यांसाठी असतं. इफ आय कॅन बी इन द स्कूल, इफ आय कॅन बी लर्न, सो ऑटोमॅटिकली माझ्यात योग्यता असेल. मैं पढ़ी लिखूंगी, मैं प्रोजेक्ट मेरे एजुकेशन पे दे दो ना. That's why they give me opportunity to learn. आई तुम्ही बारावी मला शिकू द्या. In 2014, I'm just 6 years, 7 years old. सुप्रीम कोर्टने मला आता लीगल आयडेंटिटी दिली आहे. पण जर मी शिकली, तुमच्याबरोबर मेरिट मध्ये आली, 10वी-12वी शिकली, तर मला वाटतं माझ्यासाठी माझं एज्युकेशनसाठी माझे अभ्यासक्रम बघितलं मला हे दिलं पाहिजे. किंवा एक टीव्हीवर एक सनसिल्कची ऍडव्हर्टाइज यायची 95-96 मध्ये की ट्रान्सजेंडर एक होती ती शॅम्पूची दाखवायची. लोकांना प्रॉब्लेम होता त्यांनी. पुढे मला वाटतं की आय कुड बी अ बॉस, आय कुड बी अ टीचर, आय कुड बी अ प्रिन्सिपल ऑफ स्कूल. तर मला त्या प्रोफेशनलचा आणि माझ्या लैंगिकतेचा काही संबंध आणू नका. पुन्हा आपण त्या लाईफ मध्ये आणताना लैंगिकता आणि समाजाला जोडू नका. मला वाटतं की माणूस काही असू शकतो. तुम्ही तुमच्या बेडरूम मध्ये काय करता तो तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मग माझा पण बेडरूम मध्ये मी काय करते माझा वैयक्तिक प्रश्न आहे. तुम्हाला कुठल्या रंगाचे कपडे आवडतात तो तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. तुम्ही कुठल्या रंगाने आहात तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. तर माझी लैंगिकता, माझी जडणघडण मला काम करू द्या. गिव्ह मी अपॉर्च्युनिटी. मी अर्न इन फेवर. इट इज माय राइट. मेरा नाम तनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सॉलिडर में. मैं बड़ी होती हूँ तो मैंने वो ऐड देखा है सबसे पहले विक्स की. अभी हम यहाँ पे बात ही कर रहे थे कि उनको बुलाना चाहिए. उनसे हमने शुरुआत की है टेलीविजन में पहली बार ये एडवर्टाइजमेंट देखना. तो मेरा जो क्वेश्चन है कि आजीचा घर जो ये आपने बनाया है, बहुत कंपनीज होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना लोगो चेंज किया होगा, एडवर्टाइजमेंट की होगी, प्राइड मंथ है, 1 महीने में एंजॉय करेंगे, सबको बाहर लाने की वो शक्ति देंगे. बट क्या सच में कोई ऐसी कंपनी है जो सामने से आके आपको बोला हो कि हाँ भाई मैं फंड करता हूँ, कि हाँ भाई मैं आपको शायद हेल्प करूंगा, मैं उनकी एजुकेशन ग्रोथ में हेल्प करूंगा? क्या कोई ऐसी कंपनी आज तक आई है सामने? आज 10 साल पहले आपके सीनियर यहाँ आप किसी कोई पता है ऐसे प्राइड मंथ की सोच लेकर थी? कैसे कोई डॉक्टर थी? आपल्याला फक्त गडबड पाठवलंच नाही. ऐसा था क्या डॉक्टर की प्राइड मंथ का ये पहली बार आपको तो सिखाया होगा. Because the principle. And for अच्छा घर के CSR फंड्स होते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि हमको किसके साथ काम करना है. You know CSR grants है पर उनके अलग-अलग टर्म्स है. जैसे इंडिया में सेक्स वर्क लीगल नहीं है. So you should have to make legal. Section 377 है. पर मतलब जो मेरी लड़की है अभी मैंने रिसेंटली कोर्स अगर आप मुझे इसका देखोगे I have raised my voice for the vaccination for the female sex workers. Still they have not kept the जिंदगी भर मास्क लगा के नहीं घूमना चाहते हैं. आप लोगों को मैसेज आएगा आधार कार्ड है तो आप इसमें पर मेरे ऑफर के पास मेरे ट्रांसजेंडर्स के पास आधार कार्ड नहीं है, आईडी प्रूफ से तो वैक्सीनेशन से रुकना नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई टुडे वी आर फाइटिंग. हेल्थ सेक्रेटरी ने अलाउ कर दिया. वी हैड अ मीटिंग. यू नो इट विल टेक टाइम. सेक्स वर्कर्स को मेनस्ट्रीमिंग करना पर अगरबत्ती माचिस पापड़ी में तो रुकना नहीं है. डोंट मीन दैट यू नो कि कैंडल्स बना के आपको एग्जीबिशन में छोटा सा कोना लगाओ. have to run full fledged with everyone. Important. So yes, the question is for corporate, but they should have to be open for them. They should have to work for the female sex worker. आज CSR फंड्स में कितने सारे पैसे होते हैं. देखिए लोगों को. कोई गांव को गोद ले लीजिए. गांव में स्कूल बनाइए. टॉयलेट्स देखो लड़के के टॉयलेट्स में ये सारे नैपकिन्स नहीं बने. डिस्पोजल नहीं. बहुत सारे इश्यूज है. मैं आपके साथ मेरा इश्यूज नहीं कर सकती. ये CSR जो फंड क्यों रखा गया इतनी बड़ी कंपनीज के लिए? ये हमारा समाज का दायित्व है. जैसे गौरी सावंत का पर्सनल नीड है, गौरी सावंत का दायित्व है कि मुझे चेंज करना है. जैसे कंपनीज का दायित्व है कि CSR के तहत वो CSR बचाएं. यदि आप पढ़ना जरूर, सभी पढ़ना चाहिए. अभी हम जेंडर बैलेंस नहीं करते. जेन्युइन प्रश्न आहे कारण की आज आपण एवढं कॉर्पोरेट सेगमेंट बाबतीत बोलतोय अँड वी आर ओपनिंग अप अबाउट सो मेनी डिस्कशन्स सर हा माझा एक हे आहे की आता लेस्बियन असो गे असो बाय असो छेड्यावर नाही सर शाखर नाही सर पण असले कोणते कॉर्पोरेट सेक्टर्स आहेत
जिकडे ट्रान्सजेंडर जो ओपनली एक्सेप्ट केलं आहे आणि सांगितलं की येस यू आर पार्ट ऑफ आर कंपनी गोदरेज मध्ये आहे. मध्ये आहे. ओके. आणि जसा तुझा प्रश्न की आमच्या चेहऱ्यावर सी अगेन देयर इज अन आयडेंटिटी दिस इज व्हॉट यू शो तू जर आता मला सांगितलं की गौरी आय एम अ गे फील ओके बट दिस इज व्हाट आई कैरी इतने लोगों में मुझे कोई नहीं बताएगा ये हिजड़ा करके मेरे बिहेवियर से पता चलेगा प्रेफरेंस से पता चलेगा बट इसको टाइम लगेगा लेसमेंट बोलने के लिए मुझे टाइम लगेगा नियर बाइसेक्सुअल सो अगर ये आपके एचआर पॉलिसी में होगा आपके पार्टनर को भी सुविधा दी जाएगी आपको आप शायद कोई ठीक करोगे सो म्हणजे अक्रॉस इंडिया से बदल है सी मेरे में गट्स है तो मैं करूंगी सी एंड मैंने महाराष्ट्र वेलफेयर बोर्ड के बोर्ड पे मेरा विक्स का एडवर्टाइज दुनिया भर में तीसरी एडवर्टाइज वर्ल्ड की तीसरा नंबर से आपल्याला रेट मिळाला मतलब और है बहुत सारे मतलब कंपनीज ने शुरू किया पर इनिशियल एकदम तुक्का नहीं रहना चाहिए आई वांट टू बी अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर मतलब आई वांट टू बी अ फर्स्ट पुलिस ऑफ ट्रांसजेंडर फर्स्ट मतलब है कंपनी बोलते हैं कि पहला आदमी का काम करना नहीं ना बेटा वो पहले का छोड़ दो इंक्लूजन मेक एवरीवन काम एचआर पॉलिसी से करो एडवर्टाइज देता है कोई जेंडर को कॉलम निकाल दो घर में टॉयलेट बाथरूम होता है उसके ऊपर मेल फीमेल लिखा होता है अब इतना लेवरेज घर बनाते हो 3 BHK 4 BHK चलो बेडरूम के अंदर तो बात में मम्मी डैडी के आसपास बैठे तो घर की कोई कॉमन किस पे भी लिखा होता है ओनली फॉर मेल फीमेल ना करने के बाद हमको पता चलता है आई होप यू यस सर थैंक यू बी लाइक अ टॉयलेट प्राइवेसी भी रखो नमस्ते वेलकम टू स्वागत है मेरा नाम सागर है आई वर्क विद एचआर टीम ये हम लोगों ने कई बार सुना है कि इंडिया जैसी जगह है जहाँ पे हम लोगों को कई बार बहुत सारी चीजें जबरदस्ती करवानी पड़ती है प्यार से लोगों को नहीं सुनते राइट तो कभी आप लोगों ने कभी सोचा कि यार हम लोग अगर अभी भी हमारे पास बच्चा लेके आएगा that this kid is born as a trans we want you to keep it with you guys तो आपको नहीं लगता अगर आप लोग भी जैसे नए बच्चों को अपनी कम्युनिटी में लेना बंद कर दो बिल्कुल एंड टेल पीपल कि यार नहीं लेंगे तुमने पैदा किया तुम पाओ अरे सागर जी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बच्चे को मुझे कुत्ता भी नहीं दिया इस करके पलट के नहीं देखा मैं अगर उनके पास रखूं तो मार डालेंगे तो मारने का पाप नहीं फील मेरे पास बच्चा आएगा तो क्या वो भीख मांगेगा नहीं वो पढ़ेगा लिखेगा आई एम अ ट्रांसजेंडर डॉक्टर स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं पर इसका प्रमाण सी आत्म देवो भव पितृ देवो भव मैंने कहा कि समाज में ऐसा होना चाहिए कि मेरा एक बच्चा दिव्यांग है एक बच्चे जैसे आप देखो मेरा एक लड़का ऐसा है एक लड़का ऐसा होना चाहिए जब आप पढ़ोगे कि ये नॉर्मल है देखिए तब शायद किसी ट्रांसजेंडर बच्चे को देखने के ट्राई मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी माँ बाप के ट्रांसजेंडर बच्चे को भी मारे ना मैं नहीं कोई क्यों दे इतने सारे जेल में औरतें हैं आदमी लोग उनके माँ बाप टिफिन लेके जाते हैं मुझे तरस आता है कि समाज कंडक्ट लोग हैं फिर भी उनकी जिसे इंडिविजुअल को पकड़ा है उसको फांसी ना दो वहां से उनकी माँ ने अपील किया कि मेरे बेटे को फांसी मत दो जबकि उसने बहुत लोगों को मारा था वो माँ के लिए वो बच्चा ही था तो ये ट्रांसजेंडर के उसकी माँ के लिए बच्चा नहीं और वो आप लोगों के समाज के डर से मेरे पिताजी रिसेंटली 4 महीने पहले गुजर चुके पुणे में उन्होंने एक बिल बनाया था कि एक प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे दिया मतलब जब उन्होंने बिल बनाया इसका मतलब वो मुझे एक्सेप्ट किया था उन्होंने चाहा था कि उनका आशीर्वाद मुझे मिले आज मेरी फैमिली ने मुझे डिनाई कर दिया चलो कोई बात नहीं डिनाई तो डिनाई से पर मेरे पिताजी 17 तारीख को गए 26 तारीख को मुझे कंडोलेंस करने से मेरे कजन ने मुझे भेजा ढूंढ के मेरा नंबर तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से मिले तो उसने कहा कि मेरे पिताजी नहीं गए कहीं नहीं 25 साल पहले मेरे पिताजी को रोड क्रॉस करते देखा था मैं मेरे चेहरे को बता नहीं सकी वो मेरे पापा है मैं डैडी को से प्लीज मैंने उनको देखा गलती में मुझो में और मेरी माँ मरने के बाद वो इंसान के कपड़े बदल चुके थे चुका चुका सब था एक लड़का जड़ा हो गया वो दर्द होगा शायद काका के जहर में मेरे बहन भाई ने मुझे बताया तक नहीं कौन से सिंधिल भाई क्या औलाद है कौन से करोड़ की प्रॉपर्टी है आखिरी बार मैं देख तो लेती थी तो आखिरी बार उनको डाटा तो कहती थी उतना भी हम तुमसे तुमने छीन लिया तो बच्चे को बोलने की माँ बाप रखेंगे क्यों कब तक ये रहेगा अभी तो किसी के बच्चे हैं
मैं किसके लिए लड़ूं? आप मुझे बताइए, क्या मैं मेरे घर में को मारू पकड़ के? मेरे पिताजी की मौत की खबर पुणे में, ऐसे ही मुंबई, टेक 3 hours to come, मैं कौन ड्राइव करके आ सकती थी? They won't call me. लड़ाई तो बहुत बाकी बाबू। और ये गौरी सावंत इंडिविजुअल एट प्रेजेंट लीडर करके भी मैं फेस कर रही हूं। तो छोटे-छोटे क्या इसे तो घर पे बुला के इसके बाल काट दिए। इनके बहुत लंबे बाल थे। मां बीमारी करके मिलने को बोला तो तू और क्या आई को पासा नहीं पिटा लगी। तो एक शर्त भाई ने कहा कि बाल काट सलून में बैठ के मेरे थोड़ा हो रहा था, बाल काट के अंदर जाके मिल गया। That the kingdom. See, no, बोलना बहुत आसान है, आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। लेकिन ज्ञान का पूरी मत हो यार, कट्टा के ज्ञान वो पिज्जा के ऊपर 2 टमाटर सॉस होता है, कितना बुरा लगता है जिंदगी उसकी कैसे पीट मसा वो जब बॉडी करता है ना खास करके दबाव वो मजा उसमें भी मुझे देने में सब कुछ देते एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क यस। ये है ना कि लॉजिकल खराब में जो सब बताया कि कैसे कितने बच्चे हैं और उनका क्या एजुकेशनल प्रोफेशनल प्रोग्रेस पे क्या यूज कर नानी का घर is like a babysitter, she will pick that one. So she will come to us, वो लिखेगी कि मैं बैंगलोर जा रही हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है, she will give it to अम्मा, she will take that is like a babysitting सरकार है। और जो औरतें फुल टाइम है, जैसे हमारे पास 8 लड़की हैं छोटी-छोटी, इंटरसेक्स बेबीज हैं, और तो भी बच्चे माँ उनको संडे को मिलने आती है, मेरे पास देखिए छोटी बच्ची है, स्कूल कॉलेज पता आप जैसे हमारे पास स्नैप नहीं है कि उनको देके दे देवे, इतना वाईफाई लगा है 600 रुपए का, उससे भी सरकार इंटरनेट कनेक्ट होता है, जिंदगी चल रही है, मतलब गर्ल्स आर विद अस। इतना ही कि वो बच्ची सेक्स वर्क में है, सो व्हाट दे हैव स्टार्टेड गिविंग दिस। और आपको पता है ये समाज ऐसा है जहाँ पे खुशी होती है कि लड़की हो गई, क्यों पता है, ताकि माँ इस अपने बुढ़ापे का मेरा सहारा हो। अगर लड़का हो गया तो उनकी समझ में बैठ के खाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माँ सेक्स वर्क करे या बहन सेक्स वर्क करे, कोई समाज ऐसा नहीं है। So they give it to us, girls are playing with us, और मेरे बच्चे मुझसे डरते नहीं। I have a small size जैसे मेरे गाड़ी की बेटी है, उसकी very मतलब मेरे साथ खेलती है, कुछ नहीं मतलब नॉर्मल नहीं है जिस तरीके से जिंदगी मुझे वही लगता है कि कंफर्ट होना चाहिए। बैग किसी के पास रखते हैं एयरपोर्ट पे, और हम लोग चेकिंग के लिए खड़ा रहते हैं, फिर वो घूमते रहते तब भी हम देखते रहते बैग कहाँ है। यहाँ पे तो इंसान का जितना जितना बच्चा मेरे गोद में देखने चाहिए, बिकॉज़ शी हैव अ ट्रस्ट, शी हैव अ फेथ, यहाँ पे बच्चे से सुरक्षित है। 6 महीने की पर्सन ने बड़ा 75 इयर्स ओल्ड मैन के ऊपर किसी ने गलत है, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ। सो वी हैव द किड्स, गर्ल छोटी-छोटी है, 2 ईयर की पेंडेमिक स्कूल चालू है, जाएगी और स्कूल नहीं भी पढ़ेगी, मतलब जो छोटी बच्ची है पेंडेमिक में उनको खेलने दे, पर हम उनके लिए उनका सक्षमीकरण करें कि आगे चलकर वो ये नहीं बोलेंगे कि आई विल बिकम अ सेक्स आई एम नॉट गिविंग यस। अच्छा साई है साई, अच्छा मुलीचं नाव साई आहे, साई। तर बेसिकली मला एक इन्स्टन्स आहे, एक प्रश्न आहे। पहिला प्रश्न विचारतो की 2015 मध्ये जब गौरी सावंतला स्वतःहून का वाटलं की आपण सुप्रीम कोर्टचं डोर नॉक करावं, पहिला प्रश्न। दुसरं असं की एक मित्र होता म्हणजे नेम त्याचं नाव नाही सांगणार ते, डेफिनेटली 2018 मध्ये जर कळलं की तिचं की त्याला घरी कन्व्हिन्स करणं थोडंसं टफ झालं, थोडासा वेळ गेला, थोडा काय गेला, पण कुठेतरी तेव्हा त्यांनी अशा गोष्टी सांगितल्या की गौरी सावंत म्हणून नाही जे आमच्याकडे फाईट करते। आपल्याकडे कसं असतं की नॉर्मली सावंत म्हणतो की आपण महाराष्ट्र नॉर्मली कनेक्ट करतो आणि कुठेतरी त्या गोष्टी त्याला कन्व्हिन्स करणं इझी जातं तरी। तर माय क्वेश्चन वॉज दॅट की व्हॉट मेड यू सुप्रीम कोर्ट, काय गोष्टी होत्या? आपण जसं म्हणतो की नॉमिनेशन द्यायचं असतं ना की माझ्यानंतर माझं कोण काय म्हणतात त्याला, दिल्ली में सेकंड नॉमिनेशन होता तो मर जाएगा तो घर में मिलेगा, सोसाइटी में कहते नहीं आई तो फॉर्म है तो उसको नहीं, उसको फंड का कहते हैं तो उसको मिलेगा बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड है त्याच्यासाठी मी विचारलं तर तेव्हा त्यांनी सांगितलं की नाही आप गायत्री का नाम नहीं लिख सकते, ब्रांड लिख सकते, तो बस आप बात करेंगे मैं तो मी टू फाइट एंड सावन की कीमत भी मोस्टली है ना, कोई मेरा नाम लेके बता के पेपर मेरे पिताजी को मैं टाटा नहीं बोल सकती, जिस सावन की मैं सावन हूँ उसी को तो मैं रुखसत भी ना कर सकी, चाहते हो उनको अलविदा भी नहीं कह सकती। तो
So what made you know? See, this is Savant is not brand or something like that. But उसकी कीमत शायद मैंने और मेरे पिता के दोनों ने की है. काय बोलू शकत नाही आपण. पण मला असं वाटतं की फोर्स नका करू. If your child come to you and say I am a kid, पेरेंट्स को भी इमोशनल ड्रामा नहीं करना चाहिए कि हम शादी कर ले, मेरा क्या होगा. शादी होने के बाद भी कितने सारे माँ बाप रास्ते पे हैं. किसी को बच्चा नहीं तो एडॉप्ट कर लो. नहीं ये फालतू रीजन मत दो कि देखो बुढ़ापे में कौन देखेगा. अभी तो सिंगल डिवोर्स भी हो रहे लोगों के. विवाह म्हणजे त्या संस्थेला सुद्धा चेक केलेला आहे ऑलरेडी. एक कलर को आपण अमेरिकेला आपण काय एक्सेप्ट केलं तर जसं गुगल जवळ आलं तसं समान हे चौकटी पण तोडत चालू आहे ना. त्यामुळे लग्नाला एकच तुम्ही ठोकळा नका धरून टाकू. ती जर एखादा मुलगा किंवा मुलगी सांगितलं आईवडिलांनी पण रिक्वेस्ट केली त्याला फोर्स नका करू. आणि ते तुम्ही त्या मुलीचं किंवा मुलाचंही आयुष्य बरबाद करताय तुमच्या स्वतःच्या सुखासाठी. आणि मग काय सांगणार की तुला म्हातारपणी कोण बघेल. तुम्हाला तरी काय करायचं की तुमच्याकडे एक पार्टनर केल्यानंतर वृद्धाश्रमात एवढी लोक आहेत. मी एका आजींना ओळखते त्यांनी लाखो रुपयाची सगळी शेती विकली. मुलाने सांगितलं की तुला घेऊन चाललं आणि दादा शिक्षणाशी सिटी तर बॉय नेव्हर कम आउट. आमच्या आश्रमात आजी आहेत त्यांनी सगळी प्रॉपर्टी विकली. मुलांनी सगळे पैसे घेतले. ट्रेन तो लातूर दादरला आला. दादा शिक्षणावर त्यांना ₹100 निघून गेले. ती बाई आंघोळीला गेली तरी पिशवी घेऊन जाते. एवढा हातात आपल्याला दिलं. सो बीइंग इन कंपनी इन्क्लुजन अँड डायव्हर्सिटी मला जसं उत्कर्ष म्हणाले की माझे फ्रेंड्स आहेत आणि आय एम ओपन. एवढं जर उपकार केलेत ना लोकांवरती तर ते वाचतात. आणखी एक्स्ट्रा मदर टेरेसा होऊन आकार करू नका लोकांना. मां ये मत करो. जीने दो. उसको खुद को पता है क्या करना है. दूसरे बारिश में काम ही है. स्प्लेंडेड. ठीक है सर. थैंक यू.